Good evening, dear students. Dear students, in this video, we are going to discuss some important scientific terms with explanation, which is applicable for all competitive examination. So let's start our today's class. So today's our first scientific term is ingredients. What it is? Ingredients. So what do you mean by ingredients? The materials that are used to prepare food are called ingredients. You remember, the materials that are used to prepare food are called ingredients. That means खाना बनाने के लिए हम लोग को जो सामग्री चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे. क्लियर? देन हियर एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन हियर. 2 ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice, such as water and a raw rice. That means for making boiled rice we need 2 ingredients. One is water and another is raw rice. So हमें क्या उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए. एक होता है पानी और दूसरा चीज़ होता है कच्चे चावल. सो यू रिमेंबर, पानी और कच्चे चावल ये दोनों क्या है ना, दोनों इंग्रेडिएंट्स है. किसका ना, उबले हुए चावल का इंग्रेडिएंट्स है. क्लियर? लेट मी रेज, just wait. Then move to next slide. You can see here, for making the boiled rice we need what? Now raw rice plus water. So that's why here raw rice and water both are 2 ingredients for boiled rice. मीन्स आपका कच्चे चावल और पानी ये दोनों क्या है ना, उबले हुए चावल के लिए क्या है ना, 2 इंग्रेडिएंट्स है, 2 सामग्री है. क्लियर? लेट मी रेज. देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. और आवर सेकेंड term, scientific term is edible parts. So dear students, remember, edible parts means parts of a plant that can be consumed are called edible parts. Are called edible parts. मतलब जो पौधे होते हैं, मतलब पौधे का कौन सा पार्ट्स हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. कंज्यूम मतलब ग्रहण कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे ना, एडिबल पार्ट्स बोलेंगे. क्लियर? मतलब पौधे का जो पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, खाने में यूज कर सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे ना, एडिबल पार्ट्स बोलेंगे, एडिबल पार्ट्स. क्लियर? सो लेट मी रेज. Okay, let me raise. So here some points are given here. Edible means eatable. जो वर्ड एडिबल हुए उसका मीनिंग क्या होता है ना, eatable, खाने का चीज. So here also some example given. In case of banana, just wait, dear students. Yes, sorry for that. Yes, okay. So in case of banana, we eat its inner stem, flower and fruit. So banana मतलब क्या होता है, जो आपका केला का जो
पेड़ होता है उसका क्या हम लोग खाते हैं ना, इनर स्टेम। क्या खाते हैं हम लोग ना, इनर स्टेम खाते हैं। ठीक है, अंदर वाला जो तना होता है, अंदर वाला जो तना, इसका जो केला का जो अंदर वाला तना होता है उसको हम लोग खाते हैं। और उसका फ्लावर, फूल की भी खाते हैं केला का, और फ्रूट और उसका फल को भी खाते हैं। क्लियर? दीज आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, दैट मीन्स स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट। क्लियर? So in some plants also we eat leaves also, leaves, roots. Clear? Let me erase. Then move to next slide. Yes, you can see here. You can see clear. It is the what? Just wait. Yes. So it is what? And now you can see here. This is the inner stem. जो अंदर में जो तना होता है वही है, अंदर वाला तना होता है। और दिस इज द फ्रूट एंड दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर। क्लियर? Look at my point. So in case of a banana plant, we use its what a the stem, flower and fruit for eating purpose. Clear? Let me erase. Then move to our next scientific term, sprouted seed. Sprouted seeds. So what do you mean by sprouted seeds? Now seeds which grow white thread-like structures when soaked in water. That means first you take some seeds and you just soak these seeds inside water for some days. After that you take out those seeds and you tie in a cloth, inside a cloth, or work with a cloth for some days. Then you observe from those seeds white thread-like structures coming outside. Then after when that means white thread-like structure come outside, then we can say these are what is sprouted seeds. These are sprouted seeds. Sprouted means क्या होता है? अंकुरित बीज। Seeds means क्या होता है? बीज। Sprouted means अंकुरित, seeds means बीज, अंकुरित बीज। क्लियर? दैट मीन्स हम लोग कुछ बीज लेके उसको यदि हम लोग पानी में क्या करेंगे ना, 1 या 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए डुबा के रखेंगे, और 1 दिन के बाद उसको बाहर निकाल के उसको एक कपड़ा में लपट के वो 1 दिन के लिए रख देना है। और 1-2 दिन के बाद आप लोग को ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से क्या होता है ना, वाइट थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, निकलना लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड सीड्स। Okay. So in the next picture you can see here. These are the sprouted seeds. Now see, this is the white thread-like structure. White thread-like structure मतलब सफ़ेद धागा जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को मिलेगा। ठीक है? देन नेक्स्ट, देन मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, that is nectar. Nectar. So what do you mean by nectar? It is a sweet pregnant liquid is secreted by most flowers. मतलब क्या होता है, जो नेक्टर होता है क्या होता है ना, फूल का एक मधु होता है। फूल का अंदर में के मधु तरल सब्सटेंस होता है, जो होता है ना ज़्यादातर फूल से क्या होता है ना, फूल से सिक्रेशन होता है, फूल से सिक्रेशन होता है। वो जो फ्लावर का जो मधु होता है फूल से निकलता है। ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट,
द फ्लावर्स हैव नेक्टर सिक्रेशन सेल्स कॉल्ड नेक्टरीज। सो नेक्स्ट वन इज नेक्टर, समझ में आ गया। जो फूल से जो मधु एक तरल पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलेंगे, स्वीट वाला मीठा वाला जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्टर बोलेंगे। और नेक्टर्स क्या है, नेक्टर्स इज द वन काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फ्लावर फॉर सिक्रेशन ऑफ नेक्टर, फॉर सिक्रेशन ऑफ नेक्टर। मतलब आपका जो फूल का जो मधु को सिक्रेशन करने के लिए फूल में एक स्पेसिफिक टाइप का क्या मिलता है ना, कोशिका मिलता है, कोशिका मिलता है। उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं ना, नेक्टरिस बोलते हैं, नेक्टरिस बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? लेट मी रेज। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज नेक्टर एंड व्हाट इज नेक्टरिस। नेक्स्ट पॉइंट, you see here, next point, bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in hives। तो have you seen bee hives? bee hives मतलब क्या होता है, bee hives मतलब जो बी का क्या होता है, you can say बी का क्या होता है, जो छत्ता होता है, बी का छत्ता होता है। ओके, बी हाइव्स मतलब क्या है, बी का छत्ता होता है। तो बीज मतलब मधुमक्खी क्या करता है ना, कलेक्ट नेक्टर, जो फूल का जो मधु तरल पदार्थ होता है उसको कलेक्ट मतलब उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके क्या करता है ना, फ्लावर से, फूल से इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको क्या बना देता है, शहद में बना देता है। शहद मतलब हनी, उसको शहद बना के कहाँ पर स्टोर करके रखता है, उसको अपना हाइव्स जो अपना होता है, क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें उसको स्टोर करके रखता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो मधुमक्खी क्या करता है, जो फूल में जो मधु होता है उसको क्या करके ना, इकट्ठा करके, ओके, इकट्ठा करके क्या करता है ना, इकट्ठा करके उसको किस में कन्वर्सन कर देता है ना, हनी मतलब शहद में कन्वर्सन करके उसको अपना जो हाइव होता है, अपना जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ता में क्या करता है ना, स्टोर करके रखता है। क्लियर? Then you can see here picture. Now here in the first picture, that bees collecting the nectar from the flower. This is the first process. Then second process, after collecting the the nectar, bees convert nectar to your honey and store in these bee hives. This one is the bee hives. Okay, then bees store honey in bee hives, and we collect honey from these bee hives. Clear? Are you getting my point? Then our next term, herbivores. What it is? Herbivores. Herbivores means animals which eat only plants or plant products are called herbivores. So animals those eat only plants or plant products are called herbivores. Herbivores means शाकाहारी। herbivores means क्या होता है ना, शाकाहारी। सो शाकाहारी जानवर कौन होते हैं ना, जानवर जो प्लांट, सिर्फ पौधे और पौधे से निकलने वाला जो प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, उसको खाते हैं। हम लोग को उनको क्या बोलेंगे ना, हर्बीवोरस, शाकाहारी बोलते हैं। क्लियर? देन
Move to our next slide. Now you can see these are the example of herbivores. First one is what? Now your rabbit. Rabbit. Your first one is what? Your rabbit. That means खरगोश. Then next herbivores example is cow, गाय. Next one is your goat, बकरी. The next one is भेड़. That means your sheep. These are the example of herbivores. Clear? That means these animals eat only plants and plant products. Clear? Then move to next term, carnivores. Carnivores means मांसाहारी. Carnivores means मांसाहारी. Animals which eat other animals are called carnivores. मतलब जानवर, मांसाहारी जानवर किसको बोलेंगे? ना जानवर जो क्या खाते हैं, ना दूसरा जानवर को खाते हैं और दूसरा जानवर का मांस खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ना कार्निवोर्स बोलेंगे. उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ना मांसाहारी बोलेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स. हम लोग अभी मांसाहारी जानवर का एग्जाम्पल देखेंगे. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ what a carnivorous animals. Now see here one tiger eating the flesh of animals and lion also eating what a flesh of other animal. So here आपका both ये जो दोनों है शेर और एक तो हो गया आपका चीता. ये है शेर, ये हो गया चीता. ये दोनों क्या करते हैं ना दूसरा जानवर का मांस खाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ना मांसाहारी और कार्निवोर्स बोलेंगे. ठीक है. लेट मी रेज. देन ओमनिवोरस. ओमनिवोरस. ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी. सर्वाहारी. एनिमल्स which eat both plants and animals are called omnivorous. मतलब वो जानवर जो प्लांट्स मतलब पौधे को भी खाते हैं और एनिमल्स दूसरा एनिमल का मांस भी खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस, सर्वाहारी. मतलब दोनों खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं. दोनों क्या बोलेंगे उनको? ना ओमनिवोरस बोलेंगे, सर्वाहारी बोलेंगे. सो लेट्स see the examples of omnivores. omnivores का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में. सी नाउ यू कैन सी हियर. फर्स्ट वन इज अ बियर, भालू. बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए ओमनिवोरस. एंड योर डॉग ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस. कुत्ता भी क्या है? ना ओमनिवोरस, सर्वाहारी है. और ह्यूमन बींग्स, इंसान, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो व्हाट ए एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस. ह्यूमन बींग क्या है? आपका जो इंसान है वो भी क्या है? ना सर्वाहारी है. ठीक है. देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स मीन्स क्या होता है ना? तो एनिमल्स दैट हॉन्ट अदर एनिमल्स आर नोन एज प्रेडेटर. प्रेडेटर मतलब हॉन्ट मीन्स शिकार करना. जो जानवर शिकार करता है, शिकारी जानवर, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ना प्रेडेटर बोलेंगे. क्लियर? एनिमल्स दैट हॉन्ट अदर एनिमल्स आर नोन एज प्रेडेटर. मतलब जो जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है उन लोग को हम क्या बोलेंगे? ना प्रेडेटर बोलेंगे. देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. प्रे. व्हाट यू मीन बाय प्रे? एनिमल्स दोज आर हंटेड बाय अदर एनिमल्स. मतलब प्रे वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर का शिकार बन जाते हैं. समझ में? जो जानवर को दूसरा जानवर अपना शिकार बना लेता है उस जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रे बोलेंगे. क्लियर? So let me erase. We can see
in next picture, just wait, you can see here one lizard. Okay, it catches what a dragonfly. Okay, ये lizard छिपकली क्या क्या है ना, ड्रैगन फ्लाई को क्या क्या है अपना शिकार बना लिया है. सो lizard here example of what a na predator, and your dragonfly here example of what a prey. Example of prey. Clear? Now clear understood what is prey and what is predator? Clear? So in this class we discuss some important scientific terms. In our next class also again we will bring one section of some important scientific terms. Thank you for watching this channel.